السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں سامعین و ناظرین؟ امید ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فضل اور توفیق سے خیر خیریت سے ہوں گے۔ آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل، اس کو زیادہ سے زیادہ آگے شیئر کیا کریں، لائک کیا کریں، سبسکرائب کیا کریں تاکہ زیادہ لوگوں کا فائدہ ہو سکے۔ آپ سارے پڑھتے ہیں قرآن پاک، کیا پڑھتے ہیں؟ ویسے تو وضو غسل کے سبق چل رہے تھے، لیکن میں نے چونکہ آج بیٹھے بیٹھے میرے ذہن میں آیا کہ وہ چیزیں تو بعد میں ہیں، پہلے جس مقصد کے لیے آپ مدرسے میں آتے ہیں کہ آپ کو قرآن پاک اچھا پڑھنا آتا ہو، آپ کو حروف کی پہچان ہو، اور قرآن پاک کو تلفظ کے ساتھ پڑھنا، تجوید کے ساتھ پڑھنا ضروری ہے۔ اور قرآن پاک میں آتا ہے نا ورتل القرآن ترتیلا، قرآن پاک کو خوب ٹھہر ٹھہر کر پڑھو۔ آپ کیسے پڑھتے ہیں؟ پھر آپ کو پتا ہوگا تو پھر ہی اچھا پڑھیں گے نا۔ آپ کو حروف کی پہچان ہوگی پھر ہی اچھا پڑھ سکو گے۔ جب آپ کو غنہ مد کی پہچان ہی نہیں ہوگی، حروف قریب الصوت کی پہچان ہی نہیں ہوگی، تو پھر کیا کریں گے آپ؟ قرآن پاک کو اتنا سیکھنا ہر بندے کے لیے فرض ہے، ایسے سمجھ لیں کہ بندہ اپنی نماز تو اچھی پڑھ سکے نا۔ ایسا نہیں ہوتا جیسے وہ ہمارے اسمبلی میں پڑھتے تھے نا وزیر، قل هو اللہ احد لم یلد، کیا نام تھا اس کا یار، اسمبلی کے فلور پر کھڑے ہو کے اس نے پڑھی، یعنی سورت اخلاص بھی نہیں آئی اس کو، قل هو اللہ۔ تو جس بندے کو سورت قل هو اللہ نہ آتی ہو جناب، اس کے کیا نماز پڑھتا ہوگا تو کیا آگے اس کی عبادات ہوں گی؟ جبکہ اتنا قرآن پاک سیکھنا کہ بندہ اپنا نماز روزہ ٹھیک کر سکے فرض ہے، ایسے سمجھ لیں۔ تو فرض جو چیز ہوتی ہے وہ ضروری ہوتی ہے زندگی میں، اور قرآن پاک کو یہ نہیں ہے یعلمون تعلمون فلانمون، نہ، اچھے طریقے سے یعلمون تعلمون، ہاں جی، اور پتہ ہو کہ حروف مدہ کیا ہے، کون سے ایسے حروف ہیں کہ جن پر غنہ کرتے ہیں، اور کون سے ایسے حرف ہیں جن پر غنہ نہیں ہوتا، یا کون سی ایسی مثالیں ہیں کہ جہاں پہ غنے ہوتے ہیں جہاں پہ نہیں ہوتے، کون سے ایسے حروف ہیں جو موٹے پڑے جاتے ہیں یا باریک پڑے جاتے ہیں، یا حروف کی پہچان کیا ہے۔ جب تک یہ ساری چیزیں آپ کو پتہ نہیں ہوں گی، آپ قرآن کو ٹھیک نہیں پڑھ سکتے بھائی۔ آپ کے ذہن میں جب یہ ساری چیزیں ازبر ہو جائیں گی، یاد ہو جائیں گی، پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ میں نے قرآن پاک کو کیسے پڑھنا ہے۔ اور قرآن پاک کو تجوید کے ساتھ پڑھنا ضروری ہے۔ اب کئی لفظ ایسے ہیں قرآن پاک کے اندر کہ بندہ اگر اس کا خیال نہ کرے نا، جیسے آتا ہے نا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، قلوب یا قلب کہتے ہیں دل کو، کس کو کہتے ہیں؟ دل کو۔ یا ختم اللہ علی قلوبہم، اور ایک اور سورہ شعراء کے اندر بھی اس کی مثال آتی ہے، الا من اتى اللہ بقلب سلیم۔ تو قلب کہتے ہیں کس کو کہتے ہیں؟ جو میں سمجھانا چاہ رہا ہوں آپ کو، کس کو کہتے ہیں؟ ایسے لکھا جاتا ہے قلب، اس کو ذرا غور کریں۔ قلب اس کا معنی ہوتا ہے دل، اور اگر اسی قلب کو آپ لکھ دیں گے اس طرح، اس کا معنی بن جائے گا، بولو، فرق آ گیا کہ نہیں بھائی؟ اگر اس کاف کو آپ یہ کاف پڑھ دیں گے تو اس کا معنی، جس کا معنی دل تھا اس کا معنی کتا بن جائے گا۔ سوچو کتنا ضروری ہے، اس لیے ہر لفظ کے مخارج کے مطابق اس کو پڑھنا ضروری ہے۔ آپ ظاہری طور پہ تو آپ قلبن یا قلبن پڑھ دیں تو اتنا فرق تو نہیں آ رہا نا، آپ کو کوئی ہو رہا ہے معلوم؟ نہیں ہو رہا، لیکن یہ قاف جو ہے موٹا ہے، کیا ہے؟ اور یہ والا فرق کتنا آگا معنی کے اندر؟ یعنی مثال کے طور پر ختم اللہ علی قلوبہم، اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی، اس کا معنی یہ ہے۔ دل معنی کس کا بن رہا ہے؟ قلوب۔ اور اگر پڑھ دیا جائے یہ والا قلوبہم تو پھر کیا بنے گا؟
माशाल्लाह कुत्तों पर मोहर लगा दी। भाई सीरियस बात है, ये कोई हंसने की बात नहीं है। बजाय बंदा इबादत करने के गुनाह कर दो, गुनाह भी कबीरा। और भी कई मिसालें आती हैं कुरान पाक में ऐसी, जैसे हरूफ करीब 100 होते हैं। अब अगर सीन सुहाद में फर्क नहीं करेंगे, ता और तवा में फर्क नहीं करेंगे, हाँ जी, जा और दाल में फर्क नहीं करेंगे, सीन और स्वाद में फर्क नहीं करेंगे, तो क्या बनेगा फिर? और कई मकामात ऐसे हैं जनाबे वाला जहां पे माना चेंज हो सकता है, अगर आप उसको मोटा नहीं पढ़ेंगे तो, या बारीक नहीं पढ़ेंगे तो। एक मिसाल आपके समझने के लिए काफी है। अब 3-4 दिन फिर सबक पढ़ेंगे और सवाल लिखेंगे। आज सिर्फ आपसे मैं ये पूछ रहा हूं, मैं जरा आज क्योंकि पहला दिन है, मैं आपसे मिसालें पूछता हूं, अभी पता चल जाएगा आपका। और खासकर जो इस लाइन में बैठे होते हैं ना बच्चे सारे इस लाइन में, उनसे मैं पूछने वाला हूं अभी, वो बताएंगे मुझे। जी खड़े हो जाएं, इस लाइन वाले सारे खड़े हो जाए, जरा जल्दी खड़े हो जाएं। इस लाइन में जो बैठे होते हैं वही क्लास के टाइम ना आप बैठ जाए। हाँ ये वाली क्लास, हाँ ये वाले जितने भी हैं ऐसे, हाँ ये वाले जितने भी, आप बैठ जाओ अभी। हाँ ये वाले ठीक है, हाँ ये वाले ठीक है। बताएं जी, पहले तो बता लफ्ज क्या लिखा मैंने, आप बताओ। मन शाकरा। आगे नीचे वाला मिन आजालिन। मिन आजा लिन। अब बता यहां पे गुन्ना है या नहीं, और यहां पे भी है कि नहीं। मन शाकरा बता दूं, एक बता, यहां गुन्ना करेंगे कि नहीं? करेंगे जी बताओ, शाबाश, क्यों करेंगे? कौन सा कायदा लग रहा है? नून साकिन तनवीन के कायदे कितने हैं? सुभान अल्लाह। ये हाल है भाई। मोटरसाइकिल मैंने आज महसूस की ये बात कि आपको पहचान फिर भूल गई है। पिछले साल पढ़े थे सबक हमने, आपको फिर भूल गया काम। हाँ जी, ये है आपका काम और ये है आपके हालात। और जो बंदा इस तरफ तवज्जो ही नहीं देता, उसके हालात क्या होंगे? कि बला मौलाना कारी शफीक सियालवी साहब जी, इनको पढ़ाते रहते हैं बार बार। अगर इनको भूला हुआ है तो जो बंदा कुरान को सही पढ़ने की कोशिश ही नहीं करता, जो कि जरूरी है, उसके हालात क्या होंगे? अब इसने अभी पहला पारा इसका पढ़ा हुआ है जी। चलें छोड़ उस बात को। यहां पे कानून कौन सा लग रहा है? तूने कहा गुन्ना होना है, क्यों होना है बता। क्या बात है जी। हाजी साहब आप बताएंगे। सुभान अल्लाह जी। मोहम्मद साहब, मोहम्मद बिन वकास। यहाँ पे इक्फा होगा। हाँ हाँ हाँ, शाबाश शाबाश। क्यों नहीं हो रहा? जर क्यों मार रहे हैं निकाल के? हाँ जी, कौन सा कायदा लग रहा है यहाँ पे भाई? आपसे पूछा यार मैंने, जिससे पूछ रहा है वही बोले। मोहम्मद कौन सा लग रहा है कायदा? इक्फा। इक्फा का कायदा। आप मुझे इक्फा का कायदा सुनाए पहले। इक्फा का कायदा सुनाओ। नून साकिन। शाबाश शाबाश शाबाश। बंदा ठीक है, तुम बड़ा नहीं बंदा। रूफ इक्फा में कोई हरफ आ जाए हाँ, तो वो इक्फा होगा। तो फिर क्या करके पढ़ेंगे? गुना करेंगे कि नहीं? नहीं। अभी कह रहा करेंगे। तुक्का लगा रहा है मेरा ख्याल, समझ नहीं है मुझे, तुक्का लगा रहा है। हाँ जी, आप बताएं। रूफ इक्फा का कायदा सुनाएं। के बाद रूफ इक्फा में से कोई हरफ आ जाए तो गुनाह करेंगे। गुना करेंगे। रूफ इक्फा कितने? अब ये बता। सुभान अल्लाह।
बड़ी मज छोटी मज सुभान अल्लाह। हाँ जी, आप बताएं सराकी साहब। क्या गड़े बात की जी, बताओ भाई। इख्फा, रूफ इख्फा सुनाए। नून साकिन या तनवीन के बाद रूफ इख्फा में से कोई हरूफ आ जाए तो गुना करेंगे। ये तो मैंने पूछा ही नहीं आपसे, मैंने कहा रूफ इख्फा सुनाए। सुना भी रूफ इख्फा। हाँ जी। ता सा जीम दाल जा जा सीन शीन दो स्वाद द्वाद आगे तो स्वाद आगे, ये तो 12 हुए हैं। आप ऑफ और काफ दोनों के एक, एक फिर 14 हुए हैं, 15 पूरा का। और साई दोनों है, साई दोनों काफ है, ऑफ भी और काफ भी। हाँ जी, रूफे इख्फा है 15। मुसीबत में पड़ गए, कारी साहब ने यकदम ही सानू खड़ा कर लिया आज। भाई जब आपको जुबानी याद ही नहीं होंगे, कुरान पाक में तो जगह जगह मिसालें आई हुई भाई, फिर आप कायदा कैसे लगा सकेंगे? नहीं लगा सकेंगे। अभी तो मैं पहले 2 कायदों पे हूं, पहले कायदे पे हूं या दूसरे पे हूं। हाँ जी, अभी तो आगे चलेंगे जी। जानू साहब, जानू बच्चा है, बता कब जानू है। हाँ जी जानू साहब आप बताएं, पूरी बात बता। इस पे गुन्ना होगा, क्यों होगा, किस कायदे के मुताबिक होगा, बता। अच्छा अपना कहां लगा रहा है आराम का जी, आप बताएं हुज़ैफा। नान लेके आऊं, 5 नान आपको खिलाऊं। आगे आ जा, ठीक है, आगे आ, ठीक है, शाबाश, बोल, पूरी बात बता, जल्दी करो, बात लंबी हो रही। फिर कल मैंने आपसे इसी तरह मिसाल लेके सबसे पूछना है। कल आपने ये वीडियो पूरी देख के सीख के आना है, आपको बता रहा हूं मैं, एंड पे बता देता हूं अच्छे तरीके से जी। इख्फा का कायदा लगा। अच्छा, इख्फा का कायदा सुनाएं। नून साकिन या मीम साकिन सुभान अल्लाह, जाए तशरीक ले गए, मीम साकिन कितों आ गई, हम आधा ले आओ, एक रह गया जी। पूरा लगता हूं। जी ऊपर वाला, ये वाला नून साकिन और सुनना है कि नहीं, ये बता पहले। कसम है, कौन सा कहता है? कसम इख्फा। शाबाश, पढ़ा तो नून साकिन नून है। साकिन या तनवीन के बाद हरूफ इख्फा में से कोई हर्फ आ रहा है तो गुना होगा, यानी इख्फा करेंगे, यानी गुन्ना करके पढ़ेंगे। रूफ इख्फा कितने हैं? 15। शाबाश, बता। ता सा जीम दाल जाल रा जा सीन शीन स्वाद ज़ाद स्वाद फा काफ काफ। रा भी है बीच में, नहीं तो तूने रा क्यों पढ़ा फिर? और तलफ्फुज़ तो सही करना, तलफ्फुज़ भी तुम सही नहीं कर रहा। स्वाद जाए तो हाजी भाई। कल जो है आपने इस तरह मिसाल लिखनी, ये वाली मिसाल लिखी जिस तरह मैंने, इसके आगे आपने कायदा पूरा लगा के आना है। मिसाल लिखेंगे कॉपी के ऊपर और आगे कायदा लगाएंगे। पढ़ा हुआ ना, इसलिए मैं लिख नहीं रहा, पढ़ा हुआ है आपने। मिन आजालिन, एक और लगा देते हैं। कायदे पे नहीं देखना, ये बात ज़हन में रहे। आपने खुद चेक करना है, यहां पे इख्फा का कायदा लग रहा है क्योंकि नून साकिन है, नून साकिन के बाद हरूफ इख्फा में से शीन आ गया। क्या आ गया जनाब? अच्छा, शीन आ गया। जब शीन आ गया तो शीन कौन से हरूफ में से है भाई? इख्फा में से। तो कौन सा कायदा लगा? नून साकिन और तनवीन के 4 कायदे हैं, उनमें से एक इज़हार है और इख्फा है, इदगाम है, इकलाब है। चारों में से दूसरा कायदा लग गया। कौन सा? इख्फा का कायदा भी याद होना चाहिए। मिन आजालिन, नून साकिन है, बात ही ना, नून साकिन हो या तनवीन हो, इसके बाद क्या आ जाए? हमजा आ जाए, हरूफ इख्फा में से कोई आ जाए, हरूफ हल्की में से आ जाए और यरमलून में से आ जाए और इकलाब का कायदा। हाँ जी, यहां पे नून साकिन के बाद क्या आ गया? ये वाला क्या है भाई?
हमजा, कौन सा कायदा लगा? इजहार, यानी गुन्ना तो नहीं करेंगे, हल्का सा इजहार करके गुजर जाएंगे। समझ आ गई बात? आगे फिर नून है, मिन हादिन, नून साकिन है, उसके बाद आ गई हा, कौन सा कायदा लग गया? नून साकिन है, उसके बाद आ गई मन ज्वालामा, कौन सा कायदा लग गया? इस तरह आप लाइन में लिखेंगे मिसालें, उसके आगे कायदा लिख के आएंगे। समझ आई कि नहीं? और समझ के आएंगे, मैंने बता दिया आपको। अच्छे तरीके से वीडियो को सुन लेना। नून साकिन हो या तनवीन हो, तनवीन भी नून ही होती है, नून साकिन हो या तनवीन हो, आपने उसके बाद वाला देखना है कि बाद में हरफ कौन सा आ रहा है। यार मलून में से कोई है, हल्की में से है, इख्फा में से है, या इकलाब का कायदा? इकलाब का कायदा कोई सुनाएगा मुझे? जी जी। नून साकिन या तनवीन के बाद हरफ बा आ जाए तो उसे मीम से बदल कर इख्फा करेंगे तो नून साकिन। चल कल देखेंगे। अब कल जरा ना मदनी कायदे को चक्कर लगा लेना भाई। कल जो है इस तरह आपको माफी नहीं मिलनी, भी बैठ जा, ठीक है, नहीं आता तो कोई बात नहीं, बैठ जा, ना 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 ना। आपकी जिम्मेदारी ज्यादा है। आप यहां आते ही कुरान को सीखने हैं और कुरान को अच्छा पढ़ने के लिए आते हैं, इसलिए अच्छे तरीके से वीडियो देख के समझ लेना, फिर लिख लेना। कल को यह ना कहना कि मुझे तो समझ ही नहीं आई, मैंने समझा दिया है। इसको लिखेंगे, इसके आगे लिखेंगे, इस पर गुनाह होगा, यहां पर यह कायदा जारी हो रहा है या ये कायदा लग रहा है। समझ आई बात? कल और मिसालों के साथ मिलेंगे व्हाट्सएप, नई मिसालों के साथ, नई बातों के साथ। तब तक के लिए